हर एक जीव सुखमय हो, हर मन में प्रेम हो, शांति हो। हर एक जीव सुखमय हो, हर मन में प्रेम हो, शांति हो। आप भी ज्वाइन करिए, म्यूट पर ही आप भी गाइए साथ में। हर एक जीव सुखमय हो, हर मन में प्रेम हो, शांति हो। मेरा मन भी सुखमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो। हर एक जीव सुखमय हो, हर मन में प्रेम हो, शांति हो। हर एक जीव सुखमय हो, हर मन में प्रेम हो, शांति हो। ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। So lately I have been listening to and learning the Hanuman Chalisa. This is good. Better? This is better. Okay. Yeah, so I was just sharing that I've been listening to the Hanuman Chalisa, and especially the one recorded by Krishna Das, and really loving it. And of course, I would want to know the meaning of each and every word that's there, and that's just my nature. I cannot just repeat it without understanding. So, and one of the lines which particularly grabs my attention is that the door to Ram is guarded by Hanuman, and without his say so, without Hanuman's permission, you cannot be in the presence of Ram. And Ram is God or divine nature, your own divine nature. And the guard, the condition that you must pass is for Hanuman to say, yes, you are ready to be in the presence of divine. And Hanuman, of course, is the epitome of surrenderfulness. So unless that surrenderfulness is seen, unless that surrenderfulness happens, जब तक ये surrenderfulness नहीं है, तब तक आप प्रवेश नहीं कर पाते अपने आप का जो आपका जो डिवाइन नेचर है, योर द गॉड विद इन. सो एज लॉन्ग
surrenderfulness cannot happen. And only when we give up this idea that I am doing something, that I know something, then the surrenderfulness happens, which is the only time Hanumanji, who is surrenderfulness itself, will say, yes, you are ready. And only when he permits, you can enter the sphere of the divine, that space which is nothing but you again, but your highest self, your truest self, your ultimate self, your true nature. वहां तक पहुंचना है अगर, which is the land of miracles, the space of joyousness, the space of truth. Then what we need is not our brains, what we need is not our intellect, what we need is not even knowledge. What we need is surrenderfulness, surrendering. Surrendering what? Surrendering this body mind, surrendering this thought that I am the doer, that I know. And because ultimately, the more you know, the more you realize that you don't know. It is only the ignorant who don't know much or don't know or know very little who think that they know. The ones who know very little think that they know. The ones that who really know that they don't know. They don't know. Nobody knows. I don't know. This body mind doesn't know. Only knowledge knows. Knowledge itself knows itself. Consciousness alone knows itself. This brain does not. This mind does not. This body does not. So the surrenderfulness, अगर ये समर्पण है आपके अंदर, तभी आप उस द्वार के पार जा सकते हो जा राम। I've been also reading a lot on Krishna Das's Guruji, Neem Karori Baba, and particularly a book called The Miracle of Love by one of his disciples from America, Ram Das. Ram Das is also an American. Actually, he passed away a couple of years ago. He is the one who took Krishna Das to Neem Karori Baba, brought him to Neem Karori Baba, and then eventually became a very well-known teacher and person who spread this awareness of oneness, of surrender, of nothingness in the US. Wrote many books. One of his was the bestseller, Be Here Now. But in this book that I'm reading, one of the stories which caught my attention, a lot of stories, literally hundreds of stories of so many amazing experiences of his and of other people in the presence of Neem Karori Baba. So one of the stories is, and this is interesting because it ties into एक किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ called the Book of Mirdad. ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ओशो ने लिखा है. ये किताब के बारे में, खुद की किताबें तो लिखी है उन्होंने, लेकिन एक्चुअली लिखी नहीं है, कहा है और लोगों ने उसमें से किताब बना दी है. लेकिन ओशो ने इस किताब के बारे में ये कहा है कि दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन एक किताब है अगर आप पढ़ने वाले हो तो ये बुक ऑफ मिर्दाद पढ़िए. तो ये somebody like Osho saying that got me very curious, so immediately I bought the book of Mirdad and I've been reading that also. And the book of Mirdad, but before I go there, the story that about Neem Karori Baba. तो Neem Karori Baba there was of course कोई कोर्स नहीं था, कोई मॉड्यूल नहीं था, कोई ऐसी units of teaching, lessons, topic, nothing like that. No book he ever wrote himself, no particular teaching कि ऐसा करो ऐसा मत करो, no do's, no don'ts. And but yet
जो भी उनके पास गया उनको एक सुकून, एक प्रेम, एक बिन शर्त वाला प्रेम का अनुभव हुआ। और उसी में से जो भी अपने आप जो भी परिवर्तन आने थे जीवन में, वो आते गए लोगों में। और तो एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी बुलाते थे उनको, महाराज जी आप कुछ सिखाते तो हो नहीं, आप कुछ तो सिखाइए। आप तो ऐसे ही बैठते हो, प्रसाद देते हो, आशीर्वाद देते हो, और बस हंसते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो, ये हनुमान चालीसा होती है, लेकिन आप तो कुछ सिखाते ही नहीं। तो इसके पहले ही रामदास ने ये बुक में कहा कि उन्होंने ऐसे कुछ मॉड्यूल या कोर्स या ऐसे कुछ नहीं बताया, ना कोई किताब लिखी, लेकिन उनका जस्ट जो बीइंग था, उनके प्रेजेंस में होना, उनके पास रहना, उनके साथ रहना, उसी में से अपने आप जिसको जो सीखना था वो सीखते ही गए, बिना सिखाए, बिना कुछ सिखाए सीखना। तो वो तो हो ही रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि भाई हमें कुछ, तो तो किसी ने उनको कहा कि भाई ये साउंड ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है? ओके, तो आप सिखाइए, ऐसे इंसिस्ट किया। तो 2-3 बार कहा, 4 बार कहा उन्होंने, ऐसे ही उनका ये क्लास मतलब क्लास तो था ही नहीं, उसको दर्शन कहते थे। लोग बस आके उनके आश्रम में बैठ जाते थे, उनके मंदिर में, जहाँ भी जिस कमरे में है वो, वहाँ बैठ जाते थे, कुछ ना कुछ प्रसाद ले आते थे और प्रसाद मिल जाता था वहीं से। बस खाना पीना, बातें ऐसे ही नॉर्मल चलती रहती थी। और ऐसे ही दिन भर, और वो एक जगह पे 2-3 दिन से ज़्यादा रहते नहीं है, कहाँ और कहाँ चले जाते थे बिल्कुल किसी को बताए बिना भी। तो एनीवे, तो ये एक ऐसी जो सत्संग कह सकते हैं उसे, जो सत्संग में बैठे थे सारे, तो ये जो एक शख्स थे वो उनको बार बार कह रहे थे कि आप कुछ सिखाइए, सिखाते नहीं, सिखाते नहीं, सिखाइए सिखाइए सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि क्या सिखा के क्या मिलेगा, क्या सीखोगे तुम? तो फिर बहुत इंसिस्ट किया, तो बोला चलो एक प्रयोग करते हैं। एक जो बैठे थे कुछ लोग, एक कोई दुकानदार, एक कोई मिल मालिक, और एक कोई डॉक्टर। तो उन्होंने पूछा उनसे कि अच्छा, आज गुरुवार है तो कल शुक्रवार है, कल क्या करने वाले हो आप? तो शॉपकीपर ने कहा बस हम जाएंगे दुकान में, दुकान खोलेंगे, और दुकान तो चालू है तो बिजनेस होगा, लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे, हम पैसे बनाएंगे, जो भी चाहिए वो माल ऑर्डर करेंगे। ऐसे 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 डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि कल मेरा ये है ऐसा प्लान। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने भी अपना प्लान बता दिया कि भाई पेशेंट्स आएंगे, मेरी क्लिनिक का ये टाइम होगा, मैं जाऊंगा, ये पेशेंट्स आएंगे, दवाई लिखूंगा, लोगों को देखूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर तीसरे बंदे को पूछा, जो मिल मालिक, तो मिल मालिक को भी पूछा आप क्या करोगे, तो कल क्या है प्लान? तो उन्होंने भी अपना प्लान बता दिया कि भाई ये मेरा प्लान कल का तो ये है कि मिल जाऊंगा और प्रोडक्शन देखूंगा, अकाउंट्स देखूंगा, लोगों से मीटिंग्स होगी, ये वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें से आप क्या समझते हैं ये बात, इस ये जो तीनों को प्रश्न पूछा और उनका जो उत्तर आया, उस पे से आपको क्या समझ में आता है? मैं आप सबको पूछ रहा हूं, ये जो सीख के बारे में जो बात थी कि हमें सिखाइए कुछ, सब हेलो, ये आवाज, हाँ जी, आप थोड़ा सा दे रही। हेलो, GN जी बोलिए। हाँ, Am I हम audible? सुन पा रहे Yes, yes, you are. हैं। ओके। ऑडिबल। तो ऑडिबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने ये नमस्ते, कहा, नमस्ते वंदना। हाँ, सबने ये कहा कि मैं ये करने वाला हूं, या जबकि करने वाला तो कोई और है, सब कुछ होने वाला है। हाँ, ये अच्छी दृष्टिकोण है। सही है, सही है, सही है। तो हाँ, बात जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली सिखाने सीखने वाला जो टॉपिक चल रहा था,
उसको लेकर क्या समझते हैं आप? तो मैंने भी शायद उधर पॉज नहीं किया, मुझे भी पॉज उधर करना चाहिए था खुद को सोचने के लिए कि क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं तो आगे पढ़ते ही गया, तो मुझे तो ये जवाब मिल ही गया। तो मुझे पता नहीं कि मुझे भी ये जवाब मिलता या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो ये लोग आए हैं, उनका कल का प्लान तो ऑलरेडी रेडी है, मेरे सिखाने ना सिखाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? उनका प्लान तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने तो कल का ऑलरेडी तय कर दिया है। मैं अगर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं अगर कहूंगा कि भैया ये ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ईश्वर की भक्ति करो, अगर मैं सिखाता ऐसा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कल का प्लान तो उनका ऑलरेडी फिक्स है। उनका प्लान तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई सिखा के कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ सिखाना नहीं है। जो भी अपने आप उभर आता है वही सही है, अपने आप जो उभर आता है वही सही है। और तो ये इंटरेस्टिंगली बुक ऑफ मिर्दाद भी मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी ये बुक ऑफ मिर्दाद जो है उसकी ये ऐसी कहानी है कि जो एक नोआ जो है बहुत, ये फेबल बोलते हैं, फेबल कहो या क्या कहते हैं, फेबल यानी जो जो लेजेंड होती है, कहानियाँ जो परंपरागत कहानियाँ कह सकते हैं जो बनी हुई है। तो वैसे एक लेजेंड है जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में कि बहुत बड़ा एक पूर आया था, पूरी धरती बिल्कुल उसका विनाश हो रहा था, और सारे प्राणी सभी 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 बस खत्म होने थे। और जो नाम की चल गया कि ये मत आई है, उन्होंने बड़ी शिप बनाई थी, बना के रखी थी, और दो दो करके सारे प्राणियों को उन्होंने लिया था, एक मेल एक फीमेल, ऐसे कपल, जिराफ, लायन, एवरी एनिमल, एवरी ह्यूमन बीइंग, सबको उन्होंने बचाया था उस नाव पे। और जब ये पूर जो आया जिसमें सारे नष्ट हो गए, तो ये जो दो बचे थे उन्हीं से सारा संसार फिर सर्जन हो गया। तो ये नोआ ने एक उसके जाते जाते उसके जो शिष्य थे उनको बताया कि आप एक ऐसा आश्रम बनाइए इस फलानी फलानी जगह पर, जहाँ पे ये लाइफ कितनी प्रेशियस है उसका एक प्रतीक करके ये लॉ हमेशा जलती रहनी चाहिए, सनातन लॉ चलेगी। और 7 ही लोग यहाँ रहेंगे, 7 या 9 जो इस आश्रम की देखभाल और ये ज्ञान को आगे ले जाएंगे, 9 जन हमेशा रहेंगे। और जो भी आएगा, जब भी कोई किसी का देहांत हो जाएगा 9 में से, तो पहला जो आएगा, जो भी आएगा उस द्वार पे, उसको आप उनको भी इंक्लूड करेंगे 9 में, और 9 के 9 रहेंगे। तो वैसे एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन एक कुछ सदियां बीत गई और 9 चलते 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 एक बार ऐसा हुआ कि एक जो इसका जो साइड हीरो है या विलन कहो, नाम मैं भूल रहा हूँ, शहमजाद या ऐसा कुछ, तो उसको थोड़ा सा घमंड आ गया था कि अपना आश्रम तो बहुत ही मशहूर है, बहुत शानदार है, इतने सारे धन है, सारा धन, इतना सारा हमारे पास लैंड है जो लोगों ने दिया है। तो थोड़ा सा घमंड आ गया था उसको। और जब एक 9वां बंदा गुजर गया, तो द्वार पे एक बिल्कुल बिना किसी कपड़े और बहुत ही फकीर सा शख्स खड़ा हो गया उधर, और रूल के हिसाब से उसको अंदर लेना था एज द 9th मॉन्क, बट ही लुक्ड एट हिम एंड उसके प्राइड ने उसको ऐसे इजाज़त नहीं दी कि उसको अंदर आने दे। ऐसा बंदा कैसे हो सकता है हमारे बराबरी का? तो उसने नहीं आने दिया। फिर किसी ने याद दिलाया वगैरह, ऐसे हो गया। और उसने कहा कि आप एक सर्वेंट बन के रह सकते हो बस,
So that ninth, this man enters as the servant, and his name is, and कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुछ सालों बाद ये मिर्दा जो है अपने जो उसका सही रूप था वो दिखाने लगता है, और उसको समझ में लोगों को आ जाता है कि यही जो नोआ, जो ओरिजिनल जो नोआ थे जिसने नाव बनाया था, उसको सबको पता चल जाता है कि जो जिस शख्स की बात नोआ ने जिक्र किया था कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भावनाशाली, बहुत ही ज्ञानी पुरुष आएंगे हमारे बीच और आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो यही होगा। तो वो पता चल गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताते जाता है कि सच क्या है, कैसे जीना है, क्या है। तो उसी में से कुछ पैराग्राफ्स है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता था। सो और इंटरेस्टिंगली दिस पैराग्राफ जो है, इट टाइज डायरेक्टली विद दिस स्टोरी ऑफ नीम करोड़ी बाबा की किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो सो ये सो बहुत ही डीप है ये, लेकिन ये जो एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूँ, तो कहते हैं कि वो मीरदाद कहते हैं उस जो बाकी के 8 मंक थे कि लेट थिंग्स अलोन एंड लेबर नॉट टू चेंज देम। लेट थिंग्स अलोन एंड लेबर नॉट टू चेंज देम, फॉर दे सीम व्हाट दे सीम ओनली बिकॉज यू सीम व्हाट यू सीम। They seem what they seem only because you seem what they seem. They neither see nor speak, except you lend them sight and speech. If they are harsh of speech, look only to your tongue. If they be ugly of appearance, search first and last your eye. Ask not of things to shed their veils. Unveil yourselves, and things will be unveiled. Nor ask of things to break their seals. Unseal yourselves, and all will be unsealed. ये एक पैराग्राफ है. So I just wanted to, hearing this, what आपको इसमें क्या समझ में आता है? That is one. दूसरा, ये समझने के बाद, जानने के बाद, ये आपके लाइफ में कैसे लागू पड़ता है? और थर्ड क्वेश्चन, ये अगर आपके लाइफ में लागू पड़ता है तो आप आपके लाइफ में इसके बारे में क्या करेंगे? ये समझने के बाद। और पहले से मैं बता दूं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं जा रहा। इनफैक्ट मेरे बायोग्राफी में अभी टीचर ऑफ वननेस लिखा है। मैं अभी आगे जाते हुए हम टीचर ऑफ वननेस निकाल देंगे। आई एम ओनली अ शेयरर ऑफ वननेस। आई एम ओनली शेयरिंग वननेस। आई कैन नॉट टीच वननेस। Everybody is already one. Everybody knows they are one. There is nothing to be taught. There is nothing to be learned. We already know. So I'm only sharing. I'm only sharing oneness. So teacher of oneness की जगह में अभी हम टाइटल दे देंगे sharer of oneness in the next round. Experimenting oneness. Sorry? Experimenting oneness. Experimenting oneness, sharing oneness, explorer of oneness, even better than sharer of oneness. Yes. Sharer भी थोड़ा harsh है। कौन होते हैं शेयर करने वाले? एक्सप्लोर कर रहे हैं बस। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। वी आर जस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ वननेस। एक्सप्लोरर ऑफ वननेस, ये अच्छा है। वी आर जस्ट एक्सप्लोरर इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो एनीवे, लेट मी रीड दिस वन मोर टाइम। लेट थिंग्स अलोन and labor not It's a buffer. Let things alone and labor not to change them.
for they seem, चलो हिंदी में इसका अनुवाद करते बोलता हूं, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, उसे बदलने की मेहनत नहीं करना है। चेष्टा। जो जैसा लग रहा है वो उसी लिए लग रहा है जैसा लग रहा है, क्योंकि आप वैसे हो। ये ना देखते हैं ना बोलते हैं, सिवा कि आप उनको दृष्टि और वचन देते हो। अगर उनका वचन कड़वा है, हार्श क्या बोलेंगे, कठोर नहीं, हार्श यानी हाँ, आप अगर उनकी बातें आपको कड़वी लग रही है, अगर उनकी बात आपको कड़वी लग रही है, तो सिर्फ अपनी जुबान की ओर देखिए, खुद की जुबान को देखिए, परखिए। अगर वे आपको अगली यानी क्या कहते हैं, सुंदर का ऑपोजिट बदसूरत। बदसूरत, अगर वे आपको बदसूरत देखते हैं, दिख रहे हैं, कोई भी आपको बदसूरत दिख रहा है, तो पहले, सबसे पहले अपनी खुद की नजर को खोजिए, को देखिए। बस यही ठीक है, इतना ही। तो कहिए अब इसमें से क्या आपको लगता है, क्या क्या नजर आता है, क्या समझ में आता है, आपके जीवन में इसका क्या कनेक्शन है? और ये जानकर कि मेरे जीवन में ये इसका कनेक्शन है, क्या हम कर सकते हैं अपने आप के बारे में? क्लियर? हाँ, हु विल गो, हु विल स्टार्ट? चलो, हाँ, पुरुषोत्तम जी। जो चीजें जैसी है उसे वैसी ही रहने दो, और आपको जो भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, या आपको, ये सारा आपका ही परसेप्शन है। आप जैसे हो वैसे आपको दुनिया दिखती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यही है ये निचोड़। सही बात है। और यदि आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है तो गलत वहां, मतलब वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि वहां गलत जो दिख रहा है वो अपने आप को खोजो कि मुझ में अपने क्या आप गलत में है, खोजो। मुझ में क्या एग्जैक्टली, गलत है जिसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, परफेक्ट। है। तो वो यदि लाइफ में प्रैक्टिकली क्या? वो यदि मैं देखने जाऊं तो हमेशा मैं दूसरों पे फोकस करने के बजाय अपने पे फोकस करूंगा। मुझे जो भी दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है, ये खोजने की कोशिश करूंगा। और जब वो कुछ गलत है और वो मुझे दिख रहा है, और जब मैं ये हर बार उसका अभ्यास कर रहा हूँ, तो वैसे करते करते मैं अपने आप को क्लीन भी कर रहा हूँ, और दुनिया मेरे लिए अच्छी अच्छी होती जा रही है। और दुनिया में मुझे कुछ गलत दिखेगा नहीं जब मैं वो सामने देख के अपने आप से जुड़ूंगा और अपना सेल्फ देखना शुरू कर दूंगा, तो मुझे सारा ही अच्छा ही दिखेगा। परफेक्ट। ओके, वन एग्जाम्पल, अभी एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। यस, अभी अभी रिसेंटली हुआ है। मेरे मैनेजमेंट में मेरे एक मेंबर है, मतलब दोस्त है, हम दोनों तीनों ने वो शुरू किया था स्कूल। तो बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, तो मुझे हमेशा एक दूसरी गलतियां ढूंढते रहते थे। लेकिन एक 3-4 दिन पहले ऐसे हुआ, वो कई गुरुजी का टॉक सुना और उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये हर चीज आपका परसेप्शन है। तो मैं वो हर बार वो ढूंढने लगा कि मुझे इसमें क्यों गलत दिख रहा है। और आखिर में समझ में आया कि नहीं, मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, और मेरी सोच ही ऐसी है, उसकी वजह से मुझे हमेशा मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। और वो उतना एक बार रियलाइजेशन हुआ तो उसके बारे में मेरे विचार ही बदल गए। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके। Oh, wait. It is Jennifer G's birthday tomorrow. Everyone unmute. Happy, चलो चलो सब लोग अनम्यूट करें फटाफट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jennifer G. Happy birthday to you.
Thank you. Love you all. Warm hug. Thank you. Bye Thank you. bye. All, yeah, love you all, love you, and Bye bye. bless you, and seek your blessings for everyone. Thank you so much. God bless everyone. वाह, Bye. चलो आप तो खुशबू है इस ओपन डोर की, ऐसी क्या बात है। बगीचा है संजीव जी का और उसका सबसे सुंदर फूल है जेनिफर माँ। Thank you. I hope वो इंग्लिश वाला फूल है ना? No. इंग्लिश वाला फूल या हिंदी वाला फूल? हिंदी वाला फूल है। हिंदी वाला। इंग्लिश वाला फूल बनेंगे तो फिर अभी तो नहीं बोल सकते इंग्लिश वाला फूल, क्योंकि फिर से खुद को फूल बनाना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। Okay. Whatever reflection you have, Okay. I'm sorry. अभी सिखा ना संजीव जी ने, हाँ, whatever you are reflecting, it will be seeing you. Whichever full you want to see. yes. Okay. देखो Bye देखो bye. जेनिफर माँ, हाँ जी। सुनो तो आपको पांडे जी हो और दो लाइन ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना बोलिए आपके birthday में। बोलिए इरशाद। महकता है ओपन डोर जिसकी खुशबू से, वो वाह, गुलाब हो तुम। अरे वाह। आलोकित है ये जहां हमारा, वो आफताब हो तुम। क्या बात है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। थैंक यू पांडे जी। लव यू ऑल। बाय बाय। Wonderful. गुड टाइम। Wonderful. पांडे जी, आपने हम सबकी भावनाएं बोल दी है। Yes. बहुत पांडे जी। मेरी वंदना कबूल हुई है, इसलिए भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। वंदना कबूल हो गई। परसों बाय द वे हम तो उम्मीद कर रहे थे 13 तारीख को आपसे मिलेंगे रिट्रीट में, हमारा मैरिज एनिवर्सरी था। वी वांटेड टू गेट योर ब्लेसिंग्स ओवर देयर इन रिट्रीट एट भोपाल, बट समहाउ वी वर लेट एंड यू हैड ऑलरेडी flew away. So happy Filhal. anniversary to both Right of you. now. हाँ, Very Happy anniversary to both. Thank you. वही आशीष चाहिए। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी Wonderful. जिंदगी में हो। Thank Okay, you. bye bye everyone. Bye bye. Happy birthday, Jennifer ji. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you so much. बड़े